Hello everyone. Today in this lecture I am going to discuss application of derivative. So give heading application of derivative. Application of derivative. First one is rate of change of any quantity. Rate of change of any quantity. So in this application we discussed any quantity change with rate of change, means change with respect to time. Suppose if I say position of any body x, position of any body x is depends on time, is a function of time. That's example 3t square minus 1. 3t square minus 1. Then velocity. Velocity is written as dx by dt. Velocity is dx by dt. This is called rate of change of position. This is called rate of change of position, dx by dt. Then in this question, if I have to find out velocity, suppose find out velocity at t is equal to 2 seconds. Find out velocity at t is equal to 2 seconds. Then for velocity, first find dx by dt. Dx by dt. And what is x? 3t square minus 1. Then derivative of 3t square is 60. Derivative of minus 1, 0. Then answer is 60. Derivative of x is 60. Now you need velocity at t is equal to 2 seconds. Then simply put here t is equal to 2. That is 6 into 2. That is 12 unit. 12 unit. Similarly, if you have to find out acceleration, then acceleration is dv by dt. Similarly, force F is equal to dp by dt. dv by dt means rate of change of velocity. P is your momentum. Rate of change of momentum is your force. Similarly, if I write power is written as dE by dt. That is rate of change of energy. Rate of change of energy is your power. ये सब आप कुछ चैप्टर के बाद पढ़ोगे. जैसे ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये पढ़ोगे आप रेक्टिलिनियर में, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये वर्क पावर एनर्जी पे. तो ये सब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. क्लियर? राइट डाउन. Okay. Write a question. Suppose you have one metallic sphere. This one is metallic sphere. Radius is suppose r. Take smaller. Radius is small r. Now, if you hit any metallic sphere, then volume of the sphere increases. If you hit any metallic object, then due to heat, this one expand. That is called your thermal expansion. Thermal expansion. Due to heat, if you heat this metallic sphere, then size of the sphere increases. That is called your thermal expansion. Now, question is, during heating, radius of sphere
right? During heating, rate of change of radius is 0.5 mm per second. 0.5 mm per second. Then find out rate of change of volume when radius is 10 mm. तो अब देखो, जैसे ही ये एक्सपांड होगा, इसका रेडियस इंक्रीज होगा, तो जब r इज इक्वल टू 10 mm है, तब फाइंड करना है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 0.5 mm पर सेकेंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, उसका मतलब है dr/dt. mm per second means in 1 second change in radius is 0.5 mm. एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? 0.5 mm. तो इसको लिखा जाता है आपका dr/dt is 0.5 mm पर सेकेंड. तो अभी आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो अभी क्या करोगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आर है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये होगा आपका dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. डेरिवेटिव ऑफ आर क्यूब इज 3r स्क्वेयर. देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t, dr/dt. अब यहाँ पे dr/dt क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है तो चेंज हो रहा है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर ये dv/dr होता, अगर ये dv/dr होता, तो आप इसको लिखते 4/3 पाई डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब इज 3r स्क्वेयर. लेकिन यहाँ पे है क्या? dv/dt. देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ dv/dr इज दिस वन, देन dv इज इक्वल टू, dr को इधर ले आओ, ये हो गया आपका dr. नाउ डिवाइड dt बोथ साइड. ठीक है, dr/dt. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वो होता है आपका dv/dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो आंसर होगा 4/3 पाई इंटू 3. ओके, 3 कैंसल, r स्क्वेयर. सो r इज व्हाट? 10 mm. 10 स्क्वेयर. dr/dt इज 0.5. तो ये हो गया आपका 100/3. 100, sorry, 3 cancel, 100. 0.5 1/2, this one is 2 into 2 pi, that is 200 pi. यहाँ पे यूनिट क्या होगा? dv/dt. v क्या होता है? वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स mm क्यूब, क्योंकि रेडियस किस में है? mm पे. तो ये हो गया आपका वॉल्यूम mm क्यूब डिवाइड बाय टाइम, दैट इज सेकेंड. दिस वन इज योर आंसर. नोट डाउन. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा और मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा जानने से पहले आपको जानना है स्लोप क्या होता है. जैसे कि मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, and this one is your straight line. Then general equation of straight line. General equation of straight line.
ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x क्या है आपका, अच्छा कोई भी एक पॉइंट में ले लूँ यहाँ पे, तो x होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अलोंग x एक्सिस, y होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अलोंग y एक्सिस, और सिंपली यू कैन से कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट is x comma y, where m is slope, m is slope क्या होता है, slope means bending of line from x axis। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है, x एक्सिस से लाइन का एंगल है थीटा, तो बेंडिंग ऑफ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट स्लोप, और इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। अगर लाइन और एक्स एक्सिस में एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, देन स्लोप इज टेन थीटा, दैट इज योर एम। लास्ट वन इज सी। ये सी क्या होता है, सी इज कॉल्ड योर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन जो क्रॉस हो रहा है, पास हो रहा है, वो वाई एक्सिस में इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये पॉइंट होता है आपका सी, मीन्स दिस लेंथ इज योर सी, दैट इज कॉल्ड योर वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट इज सी। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी, y इज इक्वल टू सी, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y इज c, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है टेन थीटा, एंड दैट इज योर एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, नोट डाउन। हो गया। अब देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया आपका लाइन, ये एंगल है थीटा। सपोज ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो इसको प्रोजेक्ट करो यहां पे, तो ये सपोज x1, दिस इज x2, एंड दिस वन इज y1, एंड दिस इज y2। ओके, x1, x2, y1, y2। अब यहां पे एक ट्राइंगल एज्यूम करो, ये ट्राइंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब देखो, ये लेंथ, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ क्या होगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, और ये लेंथ क्या होगा आपका y2 माइनस y1, then P is your perpendicular is equal to y2 minus y1। सिमिलरली बेस, ये जो बेस है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो भी ये लेंथ क्या है, ये लेंथ दैट इज x2, टोटल लेंथ इज x2, और ये लेंथ है आपका x1, टोटल लेंथ x2, ये लेंथ है x1, तो ये जो लेंथ है वो होगा आपका x2 माइनस x1, तो बेस हो गया x2 माइनस x1। नाउ इन दिस केस अगेन राइट स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू
tan theta, then tan theta is perpendicular by base, then perpendicular is y2 minus y1, base is x2 minus x1. That is also written as delta y by delta x, डेल्टा y बाई डेल्टा x. अच्छा, मान लो कि ये जो डेल्टा y और डेल्टा x है ये बहुत ही स्मॉल है. डेल्टा y एंड डेल्टा x आर वेरी वेरी स्मॉल. इफ डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स यू कैन से टेंस टू 0. अगर बहुत ही छोटा है 0.001 ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0. Delta x tending to 0. When delta x is tending to 0, then obviously delta y also very small. अगर ये भी बहुत ही small है, then delta y by delta x can be written as dy by dx. Delta y by delta x is equal to dy by dx. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो slope is equal to dy by dx. Note down. नेक्स्ट, ये तो था आपके स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप. अगर आपका कर्व है तो कैसे करोगे? मान लो आपके पास एक ऐसा कर्व है, तो कर्व में हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है. जैसे मुझे चाहिए इस पॉइंट पे स्लोप. अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. ये हो गया टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो ये जो एंगल होगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट. सपोज पॉइंट इज 1, then tan theta, then you write slope of point 1 is tan theta. Similarly, अगर मुझे यहां पे चाहिए स्लोप तो मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरीके से. सपोज पॉइंट 2, ये थीटा 1 ले लो, ये हो गया थीटा 2. देन अगेन स्लोप ऑफ पॉइंट 2 इज tan थीटा 2. तो यहां पे देखो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, मीन्स जैसे ही आप यहां से ऊपर मूव करोगे एंगल डिक्रीज होगा. अगर एंगल डिक्रीज होगा देन स्लोप ऑल्सो डिक्रीजेस. सिमिलरली अगर मुझे इस मैक्सिमम पॉइंट चाहिए इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो. तो क्या ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पॉइंट 3 ले लो इसे, तो थीटा 3 क्या हो जाएगा 0. अगर कोई एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसके और इसमें एंगल क्या है 0 डिग्री. देन स्लोप इज रिटन एज tan 0, दैट इज 0. तो स्लोप यहां से यहां तक डिक्रीज होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा. तो अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को जूम करूं, कोई एक छोटा सा पॉइंट ले लो, छोटा सा पॉइंट, इसको अभी जूम करो, छोटे से पॉइंट को जूम करो. अगर मैं इस छोटे से पॉइंट को जूम करूं, बहुत ही जूम करूं, तो ये नियरली स्ट्रेट लाइन होगा. अगर मैं इस छोटे से पॉइंट को जूम करूं तो ये एक नियरली स्ट्रेट लाइन होगा. तो इसको अगेन प्रोजेक्ट करो एक्स एक्सिस पे, x1 x2, ये हो गया y1 y2. Then this angle is theta, then this one is y2 minus y1 and this length is x2 minus x1, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में किया था. तो अब देखो, ये इसको मैंने जूम किया है, एक्चुअल में लेंथ क्या है बहुत ही छोटा. अगर लेंथ बहुत ही छोटा है तो डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0. अगर टेंस टू 0 देन स्लोप क्या होता है आपका dy by dx, जस्ट लाइक योर स्ट्रेट लाइन. अभी जो आपने स्ट्रेट लाइन में किया था m इज इक्वल टू dy by dx, सेम वही होता है. क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप चाहिए तो आप क्या निकालोगे,
dy by dx at that point. क्लियर? एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 1 और आपको चाहिए अभी स्लोप. अगर ये y और x, इसका मतलब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कोई ना कोई तो ग्राफ होगा. तो अब आपको स्लोप चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे. यू नीड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2. तो स्लोप के लिए आप क्या लिखोगे? dy by dx, that is d by dx. y क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1. तो डेरिवेटिव ऑफ 2x² 4x माइनस एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0. तो आपको स्लोप चाहिए एट x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो. दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 इज 7. स्लोप क्या हो गया आपका? 7 हो गया. अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका क्या होता है? पैराबोलिक इक्वेशन. मान लो कि कुछ इस तरीके से कर्व हुआ, कुछ ऐसा कर्व हुआ. तो इस पॉइंट, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 2. ये पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू 2. तो इस पॉइंट में जो स्लोप होगा, इस पॉइंट में जो स्लोप होगा वो होगा आपका 7. x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे स्लोप क्या है आपका? 7. ओके, नोट डाउन. नेक्स्ट, अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे. y x x y. देखो, मान लो कि जो आपका कर्व है, कोई एक इक्वेशन है जिसके लिए आपको कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होगा. सपोज x पॉइंट पे आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, वो हो गया ये पॉइंट. अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा. थीटा इज 0 डिग्री. थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री. देन स्लोप आप क्या लिखते हो? tan थीटा, दैट इज tan 0. tan 0 होता है 0. तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? 0. दिस इज कॉल्ड योर मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमा. और मैक्सिमा में स्लोप हमेशा क्या होता है? 0. सिमिलरली मान लो आपके पास कर्व है कुछ इस तरीके से. तो यहां पे y की मिनिमम वैल्यू यहां पे है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. मिनिमम वैल्यू ऑफ y. तो इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चाहिए तो अगेन मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस. तो एंगल क्या होगा? एंगल हो गया आपका 0 डिग्री. अगर एंगल 0 डिग्री है तो अगेन स्लोप 0. तो यहां पे भी स्लोप क्या है? 0. देन यू कैन से एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप हमेशा 0 होगा. मैक्सिमा में भी स्लोप 0, मिनिमा में भी स्लोप 0. राइट डाउन. इन मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप that is dy by dx is always 0. हमेशा क्या होगा? 0 होगा. नोट डाउन. स्लोप होगा आपका 0. क्लियर? तो अब देखो, दोनों केस में स्लोप हो गया 0. तो अगर एक इक्वेशन गिवन है और आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो अगर dy by dx इक्वल टू 0 करोगे तो मे भी मैक्सिमा हो सकता है और मे भी
मिनिमा हो सकता है। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको चाहिए क्या, मैक्सिमा चाहिए और मिनिमा चाहिए। वो आपके फिजिक्स में गिवन होता है। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में गिवन होता है दैट व्हाट यू वांट, मैक्सिमा और मिनिमा। अगर गिवन नहीं है और पूछा जाए कि ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, उसके लिए आपको करना होगा डबल डेरिवेटिव। मान लो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x। तो स्लोप के लिए क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। स्लोप के लिए क्या करोगे, dy बाई डी एक्स एंड इक्वेट टू जीरो। स्लोप होगा dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स को इक्वेट करोगे जीरो पे। तो यहां से इसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो करोगे डबल डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, तो यहां पे आपको मिलेगा मिनिमा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। सिमिलरली अगर ये लेस देन जीरो है तो आपको मिलेगा मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। क्लियर, नोट डाउन। ओके, सी वन एग्जांपल। Suppose y is equal to 2x square minus 3x plus 2, 2x square minus 3x plus 2, and question है find out minima और मिनिमा और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले करोगे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x square minus 3x plus 1, then derivative is derivative of 2x square 4x, derivative of minus 3x is 3, derivative of 1 is 0। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, स्लोप हमेशा क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा में स्लोप हमेशा होता है 0। तो इसको इक्वेट कर दो 0, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा में dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप होता है 0। तो x की वैल्यू क्या है, 3/4। x की वैल्यू मिल गया आपका 3/4। क्लियर। तो अब देखो, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अगर पूछा जाए कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। दैट मीन्स अगेन डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4, डेरिवेटिव ऑफ 3 0। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज 4। तो ये क्या आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, एज दिस वन इज ग्रेटर देन 0, तो आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू, दैट इज योर मिनिमा। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y की मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब x की वैल्यू 3/4 होगा। तो 2 इन प्लेस ऑफ x पुट 3/4। तो ये हो गया आपका 3/4 होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 2। देन 9 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 9/8, 9/8 माइनस 9/4
प्लस 2। इसको सॉल्व कर दो, जो होगा वो होगा इसका मिनिमम वैल्यू। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी position, no, right, okay, position of a body is x is equal to 60 minus 2t square plus 1 plus 1. So question is find out maximum position. Find out maximum position of particle. Maximum position of particle. तो अब देखो x की जो पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर। तो क्या करोगे अभी? मैक्सिमम पोजीशन, अगर पोजीशन मैक्सिमम है तो dx बाय dt क्या हो जाएगा? 0। सो फर्स्ट फाइंड आउट dx बाय dt। तो डेरिवेटिव ऑफ 60 इज 6 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2t स्क्वेयर इज 4t एंड इक्वेट दिस वन टू 0। तो ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू 4t, देन t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड। Derivative of 66 minus 2t square derivative 4t, then 6 is equal to 4t, t is equal to 3/2 second. So position at t is equal to 3/2, 3/2, that is 6 into, put in place of t 3/2 minus 2 into 3 square 9, 2 square 4 plus 1, then 6 into 3/2, ये हो गया आपका 9, ये आपका 9/2, that is 4.5 plus 1, then 9 minus 4.5, 4.5 plus 1, that is 5.5. तो फाइनल पोजीशन, that is maximum position. This is the maximum position, and maximum position is 5.5. अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम पोजीशन है या मिनिमम पोजीशन है तो क्या करोगे? डबल डेरिवेटिव चेक करके देखो। डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, दैट इज डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी क्या है आपका? 6 minus 40, 6 minus 40. So derivative of 6, 0. Derivative of minus 40 is minus 4. Then this is negative. Negative means less than 0. Then you get maxima. Then maximum value of x is 5.5. Note down. Now, suppose x plus y is equal to 10. This is the given. X plus y is equal to 10. Then find out maximum possible value of x into y. If x plus y is 10, then find out maximum possible value of xy. Let's suppose z is equal to xy. Z is equal to xy. Then maximum value of x into y is maximum value of z. Then what is the given? X plus y is equal to 10. So I can write here y is equal to 10 minus x, y is equal to 10 minus x,
तो यहाँ पे पुट कर दो, x हो गया, देन y क्या है 10 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपको अभी किसका मैक्सिमम चाहिए, एक्स वाई का, मीन्स जेड का मैक्सिमम चाहिए। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम पे स्लोप होता है 0 और स्लोप होता है आपका डी जेड बाय डी एक्स। तो अभी क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ 10x 10, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x, एंड मैक्सिमम पे स्लोप होता है आपका 0, देन 10 माइनस 2x is 0, then 2x is equal to 10, then x is equal to 5, 10 by 2 5. If x is equal to 5, then what is y? Y is 10 minus x, that is 10 minus 5, that is 5. Then maximum value of z, that is maximum value of xy. Maximum value of xy when x is equal to 5, y is equal to 5, that is 5 into 5 25। आप x की कोई भी रैंडम वैल्यू चूज करो और y में पुट करके x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो कुछ भी अगर वैल्यू आप चूज करोगे एक्सेप्ट 5, तो जो वैल्यू आपका होगा x एंड y वो हमेशा 25 से कम होगा। x की वैल्यू रैंडमली कुछ भी चूज कर लो, जो भी, हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन x और y का मल्टीप्लिकेशन 25 से कम ही होगा। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका 25। ओके, नोट डाउन।